نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب صحیح بخاری کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر نقل ہے۔ آپ کا حسب معمول تھا، صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے آپ پوچھتے تھے کہ آپ کو رات کو کوئی خواب آیا تو آپ مجھ پہ وہ خواب بیان کریں، میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں۔ ایک دن ایسا تھا، آپ نے نماز پڑھی اور صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھے خواب آیا ہے، وہ خواب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کر دیا۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں مجھے خواب آیا، قیامت قائم ہو چکی ہے، میں قیامت کے میدان میں ہوں۔ قیامت کے میدان میں رأیت النبی وما هو رجلان، میں نے قیامت کے میدان میں ایک نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ صرف 2 امتی تھے۔ آپ نے آگے فرمایا کہ ورأیت النبی وما هو رجل، دوسرے نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ صرف 1 امتی تھا۔ ورأیت النبی واحد، میں نے ایک اور نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں تھا، وہ اکیلے ہی تھے۔ وہ دین کی دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب تک زندہ رہے کوئی بھی ان پہ ایمان نہیں لیا، مسلمان نہیں ہوا، ان کا کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے چلا، آگے جا کے میں نے دیکھا ایک بہت بڑی جماعت مجھے نظر آئی۔ اس جماعت کو دیکھتے ہی میں نے یہ پوچھا کہ یہ جماعت کس کی ہے، اور میرے ذہن کے اندر یہ تصور تھا کہ یہ امت محمدیہ، یہ میری امت ہے۔ یہ کس کی امت ہے؟ جواب دیا ہذہ امت موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے فوراً ہی یہ سوال کیا، یہ پوچھا کہ میری امت کہاں ہے؟ مجھے جواب دیا گیا کہ آپ کی امت اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا کثیر تعداد میں ہے کہ آپ کی امت میں سے کل قیامت کے دن 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے کانوں کے اندر یہ آواز داخل ہوئی کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، میں نے فوراً ہی اللہ رب العالمین سے ایک دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی فاستأذنی فزادنی، اے اللہ جن لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر آپ داخل کریں گے، ان لوگوں کے اندر آپ ذرا سا اضافہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور اس کے اندر اضافہ کر دیا۔ اضافہ کس قدر کیا؟ جامعہ ترمذی کے الفاظ شروع ہو گئے۔ اضافہ اس قدر کیا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ وہ 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان 70,000 میں ہر 1000 کے ساتھ پھر ایک اور 70,000 ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے آپ کی امت کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آپ نے اپنا خواب سنایا، مصلی سے اٹھے، گھر چڑھے گئے۔ صحابہ کرام ذہن کے اندر سوال لے کے بیٹھے ہیں، کس کی کیا جرت کہ آپ کو روکے اور آگے سوال پوچھ لے۔ آپ اٹھے اور گھر چلے گئے۔ واپس جب دوسری نماز کا وقت آیا، باتیں قیمتی ہیں، اگر آپ دھیان دیں گے تو سمجھ آئے گی، اگر سوئے رہیں گے تو پھر ضائع ہو جائے گی۔ آپ اٹھ کے چلے گئے، دوسری نماز کا ٹائم آیا، جیسے ہی دوسری نماز کا وقت آیا آپ مسجد میں تشریف لے کے آئے۔ جیسے پہنچا صحابہ کرام کو دیکھا، آپ نے محسوس کیا کہ جس جگہ پہ میں آپ کو چھوڑ گیا اور آپ کی بیٹھک سے، آپ کی ترتیب سے ایسے لگتا ہے جیسے آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے تھے، آپ ویسے ہی بیٹھے، آپ میں سے کوئی گھر بھی نہیں گیا۔ صحابہ کرام نے جواب دیا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے، ہم اپنی صفوں پہ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی گھر نہیں گیا۔ آپ نے پوچھا کیوں، بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا آپ نے یہ خواب بتایا
اور یہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. ہم سارے ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ بات کہاں تک پہنچی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں، ہم میں سے بعض صحابہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. ان میں سے بعض صحابہ نے یہ کہا ہے کہ جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست اور ساتھی ہوں گے، آپ کی صحبت حاصل کی ہوگی، وہی لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. پھر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم میں سے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے وُلِدُوا عَلَى الْإِسْلَامِ جو پیدا ہوئے اسلام پہ، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ اور فوت بھی اسلام پہ ہوئے. بعض لوگ غیر مسلم سے مسلمان ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے، جو پیدا ہی مسلمان ہوئے اور فوت بھی مسلمان ہو، مسلمانی کی حالت میں فوت ہو گئے، ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے، یہ وہ لوگ ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ آپ کی بات اپنی حد تک درست ہے، لیکن آپ سنیں وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے. ان کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی، 4 خوبیاں ہوں گی. وہ 4 خوبیوں کے مالک ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. آپ نے کیا فرمایا؟ لا یستلقون. پہلی خوبی ان میں یہ ہوگی کہ وہ استقلال کرنے والے نہیں ہوں گے. ولا یکتمون. اور آپ نے تیسرا جملہ ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. 4 خوبیاں ان کے اندر ہوں گی. اب اس کا ترجمہ سمیت لا یستلقون استقلال کرنے والے نہیں ہوں گے، جو دم کے قائل ہیں اور دم سمجھتے ہیں، بات سمجھے. لا یستلقون استقلال کرنے والے نہیں ہوں گے. ایک ہوتا ہے رقیہ، عربی کے اندر دم کو کہا جاتا ہے رقیہ. دم کروانا کسی سے بھی کروا لے، یہ صحیح ہے، دم کروانا درست ہے، صحیح ہے، اب کروا سکتے ہیں. یہاں دم کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں ذکر ہے لا یستلقون، وہ استقلال نہیں کرتے ہوں گے. استقلال کسے کہتے ہیں؟ استقلال کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے متعلق یہ عقیدہ بنا لے کہ اس بندے کے پاس جائیں گے، یہ وہ دم کرے گا، وہ علاج کرے گا، شفا اسی کے ہاتھوں ملے گی، کسی اور کے ہاتھوں شفا ہے ہی نہیں. دم یہی دم کریں گے تو شفا ہوگی، ورنہ نہیں. وہ بندہ نہیں ملا، اس کے پیچھے اس کو تلاش کر رہی ہے، اس کو ڈھونڈ رہی ہے اور اس کا انتظار کر رہی ہے. اسے کہتے ہیں استقلال. کسی بندے کے متعلق عقیدہ ہی بنا لینا یہی دم کرے گا تو شفا ملے گی، ورنہ شفا ملے گی نہیں. اس کے کہتے ہیں استقلال. استقلال کرنے والے نہیں ہوگے. دم کسی سے بھی کروا لے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اہل علم ہے، شریعت کے مطابق وہ دم کرے، کوئی بھی ہو وہ دم کر سکتا ہے، لیکن نہیں، اس کو نہیں، اس سے کروانا ہے. چھوٹی سرکار سے نہیں، بڑی سے کروانا ہے، کہ اس کی گدی بھی اور پگ بھی اس کی بڑی ہے، اس سے شفا ملتی ہے. بھلا اس کو آتا ہی کچھ نہ ہو، یہ تو ایک الگ ہی بات ہے. لا یستلقون استقلال کرنے والے نہیں ہوں گے. آپ نے آگے فرمایا ولا یکتمون اپنے جسم کو داغنے والے نہیں ہوں گے. دور جاہلیت کے اندر لوگ جسم کے جس حصے پہ درد ہوتا تھا، ایک یعنی ان کے ہاں ایک مخصوص چیز ہوتی تھی، جسم کے اوپر رکھ کے وہاں سے خون نکال لیتے تھے، اسے انسان کے جسم کو داغتے تھے، جسم کو کاٹ دیتے تھے. فرمایا کہ ایسا کرنے والے نہیں ہوں گے. تیسری بات ولا یتطیرون فال نکالنے والے. فال نکالنے، طوطے کے پاس گئے، اس نے فال نکالے، فال نکال کے بتا دیا تمہارا تارا ہی گردش کے اندر ہے. طوطے کے پاس گیا، اس نے بتا دیا تمہاری 4 شادیاں ہوگی. طوطے کے پاس گیا، اس سے فال نکالا، کسی بندے کو ہاتھ دکھایا، فال نکالے، تمہارا سارا ہی ستارہ پورا عروج پہ ہے، تمہارے گھر کے اندر بلے ہی بلے ہوگی. یہ فال نکالنے والے شخص ایسے اس کے اندر خوبی نہیں ہوگی. آپ نے چوتھی بار کیا فرمائی؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ہر معاملے کے اندر اللہ رب العالمین پر وہ توکل کرنے والے ہوں گے. یہ 4 خوبیاں ان لوگوں کے اندر موجود ہوں گی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے. آپ نے یہ بتا دیا. جیسے ہی آپ نے بتایا، جیسے آپ نے حدیث ختم کی، خواب مکمل کیا، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے جس کا نام عکاشہ بن محصن ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کھڑے ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی 70,000 لوگوں میں شامل کر دے. آپ نے فوراً کہا انت
मिनहुम, ऐ उकाशा तू भी उन्हीं लोगों में शामिल है जो बगैर हिसाब व किताब के 70,000 लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। ये बैठे, दूसरा खड़ा हो गया सहाबे रसूल, फरमाया कि मेरे लिए भी दुआ कर दे। आपने फरमाया कि साबा का उकाशा नंबर ले गया है, उकाशा सबकत कर गया है। ये थी तमहीद। हमारा मौजू भी यही है, शायद कि आपके इल्म में हो, उकाशा नंबर ले गया है। अब बात यह है, हमारा आज का जो उन्वान और टॉपिक है, ये तमहीद थी बात समझाने के लिए, मौजू की तरफ लेके आने के लिए कि उकाशा नंबर ले गया। अब मोमिन इसके इल्म में आ जाए, इसे पता चल जाए, इसे मालूम हो जाए कि ये अमल मेरे लिए जन्नत का सबब बन सकता है, फिर ताखीर किस बात की। इंसान के इल्म में आ जाए, पता चल जाए, मालूम हो जाए कि ये अमल मेरे लिए जन्नत का सबब बन सकता है, ताखीर हरगिज़ नहीं करनी। अगर ताखीर कर दी फिर वही सूरत हाल होगी जो सहाबी रसूल पीछे रह गए। आपने क्या फरमाया, साबा का उकाशा नंबर ले गया, तो फौरन ही जन्नत के तलबगार बनेंगे। जहां कहीं अमल देखेंगे, पता चलेगा, फौरन अमल कर लेंगे, जजा फजा का शिकार नहीं होंगे, कीलो काल नहीं निकालेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, पता नहीं यही अमल जन्नत के दाखिले का सबब बन जाए, फिर उसके अंदर ताखीर नहीं करनी। अगर इंसान अमल कर रहा है, अपनी जबान से एक जुमला भी निकाल देता है, अल्लाह ताला को यह भी ना पसंद है, अमल भी कर रहा है लेकिन साथ ये भी कहता है कि ये अमल तो इतना लंबा और तवील हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है ये एक ही अमल हमारे लिए दाखिले का सबब बन जाए। लेकिन ये जज्बा हमारे अंदर तब पैदा होगा जब इस आयात के मुताबिक ईमान आएगा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इhtदौ। रब ताला से दुआ करे अल्लाह ताला सहाबा जैसा ईमान पैदा कर दे। सहाबा को आप देखें, एक नमाज से दूसरी नमाज तक इस बात की तलाश में है उसके अंदर खूबी क्या है जो 70,000 बगैर हिसाब व किताब के। आप पीरियड तो देखें, सुबह की नमाज का, जोहर की नमाज का पीरियड कितना है, वक्त कितना है। यह है जन्नत के मुतलाशी, यह है जन्नत के तलबगार। जरा सा कुछ देर या लेट हुई, जन्नत चाहिए लेकिन अमल नहीं करना, अपनी बात की तरफ आते हैं। आप देखें सहाबा किराम जैसे ही अमल सामने आया, सामने फौरन ही अमल करने के लिए तैयार हो गए। क्यों? दिल के अंदर जन्नत पाने की तलब थी, जन्नत पाने की तलब थी। सरे फहरिस्त नंबर 1 पे जन्नत को हासिल करने के लिए सहाबा किराम किस कदर मुतलाशी हैं। आप देखें वक्त कम है, बातें बहुत ही तवील है और बड़ी काम की बातें हैं, शायद कि मेरे दिल पे ये बातें बैठ जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि मन यज़मनु ली वाहिदन अज़मनु लहुल जन्नह। कोई शख्स मुझे एक चीज की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। यह हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया कि मुझे एक चीज की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। आपने चीज का नाम नहीं बताया, जैसे आपने ये जुमला अपनी ज़बान मुबारक से निकाला, सामने मजलिस के अंदर बैठे हुए सैयदना अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जमानत देता हूं। अब पता नहीं है जमानत किस चीज की देनी है, लेकिन क्यों बात सामने आई है जन्नत की। जमानत आप दे एक चीज की, मैं आपको जन्नत की जमानत देता हूं। जैसे ही बात सुनी फौरन खड़े हो गए। अभी पता नहीं है जमानत किस चीज की देनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत क्या मांगेंगे नहीं पता। क्यों? जन्नत की बात है, जब जन्नत लेनी है तो फिर चीज को क्या देखना है। यह है सहाबा किराम, चीज का पता ही नहीं है, उसके बाद जन्नत के लिए तैयार हो गए। यह है अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस हदीस को मुकम्मल बाद में करेंगे। आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक पे, आपके फरमान पे सहाबा किराम को किस कदर यकीन था। दूसरों की बात तो दूर है, इसी की बात कर लेते हैं। सहाबे रसूल सैयदना अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान देख लेते हैं। आपकी बात पे किस कदर ईमान और यकीन था।
तभी तो खड़े हो गए थे। आइए सुनिए, सही बुखारी के अंदर ये वाकया दर्ज है। मदीना के हालात, ये एक नुक्ता है बात को समझाने के लिए। मदीना के हालात कुछ खराब हुए। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी को लेते हैं, मदीना को छोड़ते हैं। जो रास्ता मदीना से कूफा जा रहा है, इस रास्ते पे चलते हुए एक अपना खैमा लगा लेते हैं। मदीना से बहुत दूर ही दोनों मियाँ बीवी इस खाने के अंदर मौजूद है और पूरा ये जंगल है, बयाबान है, इसके इर्द गिर्द दूर तक आबादी है, करीब आबादी ही नहीं है। वक्त ऐसा आया, सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला की तबीयत खराब हुई, बीमार हो गए। बीमारी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई, आज के दिन मालूम हो रहा था कि सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला को करीब है आज फोत हो जाएंगे। बेहोशी की हालत में है, बीवी करीब ही सिरहाने बैठी हुई है, ज़ारो कतार रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है। सैयदना अबू ज़र लेटे हुए हैं। अचानक से बीवी परेशान है, जहन के अंदर कई एक सवाल भी पैदा हो चुके हैं। क्यों मैं अकेली हूं यहाँ पे? अगर ये शख्स और ये शख्सियत फोत हो गई तो गुस्ल कौन देगा? इसको कफन मैं कैसे अकेली देगी? और इसको दफन कैसे करोगे? इसका जनाजा कैसे बढ़ाओगे? कई एक सवाल सामने है, यहाँ अकेली हो और ज़ारो कतार रो दे रही है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आंखें खोली। खोलने के बाद अपनी बीवी से क्या कहते हैं? अशबरी वला तबकी, ऐ मेरी बीवी, मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं, आप मत रोए। मैं आपको खुशखबरी देता हूं, आप मत रोए। बीवी ने अपने हाल पे कंट्रोल किया, रोना बंद किया और पूछा क्या खुशखबरी है? खुशखबरी बताने लगे। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक दिन हम चंद एक सहाबा किराम मौजूद थे, हदीस सही बुखारी की है। चंद एक सहाबा किराम हम मौजूद थे। आपने फरमाया कि आप में से जितने सहाबा यहाँ मौजूद हैं, आप में से एक सहाबी रसूल का जंगल के अंदर इंतकाल होगा, जंगल के अंदर इंतकाल होगा। लेकिन आपने किसी सहाबी का नाम नहीं बताया, इतना कह दिया कि वो जंगल में उनका इंतकाल होगा। लेकिन मेरी बीवी अब ये बात समझे कि मेरे साथ जितने भी दोस्त थे, जितने भी साथी मौजूद थे, वो बैठे थे, वो सारे के सारे आज से कबल वो फोत हो चुके हैं, सारे के सारे फोत हो चुके हैं। मैं अकेला रह गया हूं। लेकिन मेरी बीवी अब ये बात भी समझ ले, वो सारे के सारे बस्ती में, इलाके में, आबादी में फोत हुए हैं। मुझे यकीन है, लेकिन जहन तसव्वुर नहीं कर रहा, अकल तस्लीम नहीं कर रही, बात समझ नहीं आ रही, या आज तक मुझे मिलने कोई नहीं आया और कौन आएगा और मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा। आपने उसी मजलिस के अंदर कहा था, जिस सहाबी रसूल का इंतकाल जंगल के अंदर होगा, मुसलमानों की एक जमात आएगी, उसके कफन दफन का एहतमाम करेगी, उसका जनाजा पढ़ाएगी और उसे दफन कर देगी। लेकिन ऐ मेरी बीवी, मेरा अकल तस्लीम नहीं कर रहा, मुझे बात ये समझ नहीं आ रही, लेकिन यकीन है, उम्मीद है। क्यों? मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, यकीन और उम्मीद है। और सारे दोस्त फोत हो गए हैं, सारे के सारे आबादी में, करिया में, बस्तियों में फोत हुए। मैं अकेला रह गया और मुझे यकीन है। लेकिन आप एक बात याद रखें, अपनी बीवी से कह रहे हैं, एक बात आप याद रखें, जब मैं फोत हो जाऊं, आपने हिम्मत करनी है, जुर्रत करनी है, मेरी लाश को आपने उठा के खैमे से बाहर रख देना है। जब मुसलमानों की जमात आए, उसका इंतजार करना। मुसलमानों की जमात है, उन्हें कह देना, हादिही अबू ज़र साहिबु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू ज़र की लाश है और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं। उन्हें बता देना। जैसे ही ये जुमला कहा, कुछ देर के बाद इंतकाल हो गया, फोत हो गए। जैसे फोत हुए, बीवी के हां सामने एक मर्द का जिस्म है, बीवी के अंदर इतना ताकत और कुव्वत नहीं थी, हदीस के अंदर जिक्र नहीं है, लाश उसी जगह पे रही खैमे के अंदर से। और इत्तफाकन आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत देखें, इत्तफाकन इसी ही रास्ते पे कूफे से एक काफिला चलता है जो मदीना जा रहा है। काफिला चलते हुए रास्ते में उसी आबादी के करीब आता है जहां सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला की वो खैमा लगा हुआ था।
काफिले का अमीर रोकता है, मेरे साथियों रुक जाओ, मुझे इत्तला मिली है, मैं अक्सर ही कूफा से मदीना, मदीना से कूफा मैं जाया करता हूँ, सफर करता हूँ, मुझे इत्तला मिली है इसी वादी के अंदर हमारे साथी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ रहते हैं, आप सारे फैल जाओ, तलाश करो कहाँ अबू ज़र का घर है। तलाश करते हुए पहुंचे, एक खैमे के बाहर ही पहुंचते हैं। इस काफिले का जो अमीर है उनका नाम है सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खैमे के करीब पहुंचते हैं, जैसे पहुंचते हैं खैमे के अंदर से आवाज देते हैं, कहा कोई मर्द है तो उसे बाहर भेजे। और ये खैमा किसका है? बताया गया ये अबू ज़र का खैमा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू ज़र को आप बाहर भेजे, मैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद हूं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उन्हें बाहर भेजे। अंदर से जवाब आता है अबू ज़र फौत हो चुके हैं, अबू ज़र का इंतकाल हो गया है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहा पर्दे में जाए और हम सारा कफन दफन का एहतमाम करते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों की जमात है, कफन दफन का एहतमाम किया, नमाज जनाजा पढ़ाया और दफन कर दिया है। यह है अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईमान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे यकीन। वापस अपनी बात पे है, अपनी बात पे वापस है। हमने बात शुरू की, मैं यज़मानु ली वाहिदन अज़मानु लहुल जन्ना, जो शख्स मुझे एक चीज की जमानत दे मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। अबू ज़र खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जमानत देता हूँ। जमानत किस चीज की है? आपने फिर इस जमानत का जिक्र किया, फरमाया कि ला यसअलुन नास शैया, जब तक हयात रहेंगे, जिंदा रहेंगे, जब तक जिंदगी आपकी बाकी है, किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। एक चीज की आप जमानत दे दे, जब तक जिंदा रहेंगे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, मांगेंगे नहीं। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत देता हूं, आपके साथ याद करता हूं, जमानत देता हूं, अगर आप ऐसा करेंगे कि इसके मुतबादिल आपके लिए जन्नत का ठिकाना है। कहा अल्लाह के रसूल वादा करता हूं, जमानत दे दी। एक वक्त ऐसा भी आया, अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सवारी पे सवार है, घोड़े पे सवार है, अचानक से घोड़े से लाठी गिरती है, जमीन पे आके गिर जाती है। इर्द गिर्द दोस्त भी मौजूद हैं, घोड़े से नीचे उतरते हैं, लाठी को उठाते हैं, फिर सवारी के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। दोस्तों ने सवाल कर दिया, अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हमें कह देते, हम इस लाठी को उठा के आपको दे देते। कहा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था, ला यसअलुन नास शैया, किसी इंसान से सवाल नहीं करना। अगर मैंने आपसे ये सवाल कर दिया और लाठी उठाने का कह दिया, मुमकिन है मेरी जन्नत के दाखिले का सबब यहां रुक जाए, शायद कि मेरी जन्नत के दाखिले का सबब रुक जाए, क्योंकि मैंने वादा किया था किसी से सवाल नहीं करना। और यह है सहाबी रसूल, एक तरफ जन्नत है, जैसे जन्नत की बात है फौरन ही जन्नत को हासिल करने के लिए तैयार हो गए। बात समझ नहीं है तो दूसरी बात देखें, ये बात जामिया तिरमिज़ी के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर कई एक मकामात पर यह हदीस दर्ज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आते हैं जिनका नाम अबू दादा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अपने साथ एक दूसरे दोस्त को, साथी को लेके आते हैं, आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अबू दादा, ये मेरा हमसाया है, मेरा दोस्त है, ये कुछ दिन कबल ये मुसलमान हुआ था, इसने कलमा पढ़ा है और मुसलमान होने की खुशी में, कलमा पढ़ने की खुशी में मैं इसे अपने खजूरों के बाग में ले गया। अपना वाक्य सुना रहे हैं, मैं अब खजूरों के बाग में इन्हें ले गया। जैसे मैं खजूरों के बाग में ले गया और मैंने इन्हें ऑफर दी, ने कहा है कि इन खजूरों के बाग में जो तना आपको पसंद आता है ता हयात में मैं आपको वो तोहफा दे देता हूं। आपने इस्लाम कबूल किया है, मैं आपको तोहफा दे रहा हूं। जब हम बाग में पहुंचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग का विजिट किया, इनको एक तना पसंद आया और कहा कि ये मुझे चाहिए, मैंने इन्हें दे दिया है और ये ताहयात मैंने इनको इनके नाम कर दिया, इनको मैंने तोहफे में दे दिया है। जैसे ही तोहफे में मिला, खुशी खुश है, ये भागते हुए अपने घर जाते हैं।
घर जाके अपनी बीवी बच्चों को लेके इस बाग में दाखिल होते हैं। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। जैसे बच्चे बाग में दाखिल हुए, बच्चों ने पत्थर उठाया, अपने दरख्त और तने से इन्होंने खजूरें क्या उतार ली थी, जितने भी दरख्त थे सब पे इन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इनके बच्चों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया है और नुकसान कर दिया है। अब मैं अपने बाग को जिस ताजिर को कारोबार के तौर पे बेचता हूं, मेरे बाग को भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। क्यों कि यहां तो बाग का अगर खरीद लेते हैं नुकसान होता है, बच्चे इसको तोड़ देते हैं, बच्चों को कैसे मना करे, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, नुकसान करते हैं। मेरा बाग कोई ताजर लेने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इन्हें कहा है, मैंने ये दरख्त और ये तना खजूर का मैंने आपको तोहफे में दिया है, लेकिन आप इसके जितने पैसे लेना चाहते हैं, जितने दिरहम दिनार लेना चाहते हैं, मुझसे आप ले और ये तना मुझे वापस कर दे। क्यों कि बच्चे आते हैं, नुकसान करते हैं, मेरा बाग आगे कोई ताजर खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। इन्होंने कहा मेरी चीज है, मैं इसे बेचूं ना बेचूं, मैं आपको नहीं बेच रहा, बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये मसला लेके हम आपके पास आए हैं, आप हमारा फैसला करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आप इसको ये एक तना वापस कर दे और इसके बदले मैं आपको जन्नत के अंदर पूरा बाग दिलवाऊंगा। इस सहाबी रसूल से कहा कि ये तना इसको वापस कर दे, जन्नत के अंदर मैं पूरा बाग खजूरों का आपको दिलवाऊंगा। इस सहाबी रसूल को आपने जो जुमला कहा, अभी ये सोच ही रहे थे, जो सहाबी रसूल अबू दादा इन्हें लेके आए थे, जिस सहाबी को तोहफा दिया था, वो फौरन बोल उठे। अभी ये सोच रहे हैं जो लेके आए थे अबू दादा रज़ी अल्लाह ताला, फौरन बोल उठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इन्हें कहा है एक खजूर के तने के बदले जन्नत के अंदर पूरा बाग दिलवाएंगे। अगर मैं पूरा का पूरा बाग इसे दे देता हूं, क्या मेरे लिए क्या खबर है? आपने फरमाया कि तेरे लिए भी वही बिशारत है, अगर तू पूरा बाग इसे दे देता है तो जन्नत के अंदर मैं तुझे इस जैसा बाग जन्नत के अंदर दिलवाऊंगा। अबू दादा फौरन खड़े हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वादा करें और मेरा ये वादा और गवाह हो जाए, मैंने ये सारा बाग इस साहब रसूल को दे दिया है, बदले में जन्नत थी। फौरन ही देर नहीं की, दे दिया बाग। फौरन उठे अबू दादा, फौरन उठे चले गए। अब बाग के अंदर दाखिल, अल्फाजों पे गौर करें आप, बाग के अंदर दाखिल नहीं हुए। अबू दादा की बीवी उम्मे दादा रज़ी अल्लाह ताला को बाग के अंदर मौजूद है। अबू दादा बाग के किनारे पे खड़े हो गए, अपनी बीवी से कह रही है या उम्मे दादा उखरिजी अल हदीका, बाग से वापस आ जाए, बाग से निकल के बाहर आ जाए, उम्मे दादा बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। उम्मे दादा ने, बीवी ने जैसे बात सुनी फौरन वापस आ गई। कहा अबू दादा क्या हो गया है, आप इतना जोर से चिल्ला रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं? कहा उम्मे दादा मैंने बाग को बेच दिया है, मैंने बाग को बेच दिया है। कहा किसको बेचा, कितने में बेचा? कहा जन्नत के बदले मैंने बाग को बेच दिया है। कहा किसको बेचा है? उम्मे दादा पूछ रही है। कहा जन्नत के बदले मैंने पूरे बाग को बेच दिया है और बेचने के जो गवाह है वो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने मुझे गवाही दी है। इस बाग को आप, इस बाग के बदले में जन्नत के अंदर मैं तुम्हें एक बाग दिलवाऊंगा, मैंने इस बाग को बेच दिया है। उम्मे दादा क्या कहती हैं, ये तो सौदा आप सस्ते में करके आ गए, जन्नत तो सस्ते में मिल गई है। आप देखें औरत के मुतालिक देखें, जन्नत तो सस्ते में मिल गई है, इतना आसान जन्नत एक बाग के बदले आप खरीद के आ गए। उम्मे दादा ने खजूरें वापस की जो ली हुई थी। अबू दादा उम्मे दादा दोनों ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर जाते हैं, रात हो जाती है। जैसे रात हुई खुशी से नींद नहीं आ रही, सही बुखारी के अल्फाज हैं, खुशी से नींद नहीं आ रही, दोनों ही ऐसे रात गुजार दी, खुश हो रहे हैं। जन्नत मिलेगी, जन्नत के अंदर गारंटी मिल गई ना, गारंटी मिल गई, जन्नत मिलेगी, जन्नत के अंदर बाग नहीं मिलेगा। नींद नहीं आ रही। सुबह हुई, नमाज के लिए मस्जिद नबवी में गए, आपने नमाज पढ़ाने के बाद आवाज लगाई, आईना अबू दादा,
अबू दादा कहाँ है? अबू दादा खड़े हो गए रज़ी अल्लाह ताला। आपने फरमाया कि करीब है। जैसे करीब है, आपने फरमाया कि अबू दादा, रात मुझे ख्वाब आया था, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझे पकड़ते हैं और जन्नत की सैर करते हैं आज। तो मैं चला गया साथ, जन्नत की हम सैर कर रहे हैं, जन्नत के महल्लात देख रहे हैं, जन्नत की नहरें देख रहे हैं, जन्नत के जेवरात देख रहे हैं। चलते हुए इतना लंबा सफर कर लिया, आखिर चलते हुए मैं थक गया था। इतना लंबा सफर किया, मैं थक गया। मैंने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से, और भी जन्नत है? कहा इससे और भी जन्नत है। कहा आज इतना ही काफी है, फिर कल आएंगे, जन्नत के आगे सैर करेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात आप सुन ले, जहां तक हमने सफर किया है, यहां तक ये सारी की सारी जन्नत आज रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबू दादा उम्मे दादा के नाम कर दी है। एक बात के बदले इतना बड़ी जन्नत मिले, अबू दादा की क्या जिंदगी तब्दील हुई। यहां पे जो सबक मिलता है, जुमला समझ आता है, वो क्या है? मोमिन को, अहले इस्लाम को पता चल जाए कि ये अमल मेरे लिए जन्नत के दाखिले का सबब बन सकता है, फिर ताखीर किस बात की, फिर लेट किस बात का, फिर पीछे क्यों हटना है? पता चल जाए जन्नत के दाखिले का ये एक ही अमल है, फौरन अमल कर ले। छोटा है, बड़ा है, अपनों के साथ है, बिगानों के साथ है, मौका मिला है। अल्लाह ताला ने ये ऑफर दी है, कहीं इंसान को मौका मिलता है, अमल को छोड़ नहीं, फौरन अमल को कर ले। मुमकिन है यही एक अमल मेरे लिए दाखिले का सबब बन जाए।